Good morning, everyone. Today we are going to study the Geography 4th chapter of Class 6 Maps. In last chapter, we learned about the globe and how we can use it to study the location of continent and ocean. However, we cannot use a globe to study places. We use a different representation of the earth called a map. The study of map is known as cartography, and the place who make them and the people who make them are known as cartographers. Difference between a globe and a map. A globe is a true model of earth and shapes and size of continent and countries are shown accurately. Globes are large and cumbersome to carry around. A map is a two-dimensional representation of the Earth on a flat surface. As a result of flattening, map often distort the shape and the size of continent and countries. The larger the area shown by the map are, the more will be distortion. Maps are convenient to carry around and refer to. Maps. Maps are two-dimensional representation of the Earth or part of it on a flat surface. Map give us plenty of information about a place such as its location, its landsform and its boundaries. When many maps are collected in the form of bundle books is known as atlas. Types of map. Physical map. Physical map are those that show natural features like mountain, plateaus, plain, river, lakes, seas, and ocean. They are also known as relief map. Political map. Political map shown the boundaries and different countries and state. Thematic map. Thematic map usually deal with single theme like the distribution of rainfall, population, vegetation, industry, and roadways. Digital map. These days, digital maps are becoming increasingly common. Digital maps are electronic maps. A variety of electronic and cartographic information is processed electronically and the output is displayed on an electronic screen such as that of a computer or smartphone. However, like any digital resources, digital maps too are dependent on electricity and the internet. They are also difficult to access in remote area. आज हम ज्योग्राफी के चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं मैप। पिछले चैप्टर में हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने ये देखा था कि ग्लोब का क्या उपयोग है, हम किस तरीके से किसी देश या किसी महाद्वीप और महासागरों का हम स्थिति जान सकते हैं। हालांकि ग्लोब का उपयोग जो है हम स्टडी में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत से अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। स्टडी में हम सिर्फ मैप को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उस जगह को अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। और जिस तरीके से हम मैप के सहारे जो पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं, और जो लोग इस तरह के मैप को बनाते हैं उनको हम लोग कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्लोब एंड मैप। एक ग्लोब जो होता है वो वास्तविक प्रतिरूप होता है पृथ्वी का। उसका शेप और साइज जो होता है कंटिनेंट और कंट्रीज का सेम एक्यूरेटली कोशिश किया जाता है लगभग एक समान दिखाए जाने का ग्लोब पे, और इसको ले जाना, कहीं भी लाना ले जाना कहीं भी थोड़ा बहुत कठिन होता है। वहीं पे मैप जो है वो टू डायमेंशनल प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वी के एक समतल सतह के चित्रण का। परिणाम स्वरूप यह एक समतल सतह पर बनाया जाता है और इसमें कई सारी अशुद्धियाँ भी मिलती हैं, त्रुटियाँ होती हैं,
जो कि उसके आकार और उसकी आकृति जो कि देश या महाद्वीप के ऊपर में वास्तविकता नहीं बैठती है। जितना बड़ा मैप या बड़ा एरिया दिखाया जाएगा उतना ज़्यादा उसमें त्रुटियां मिलेंगी, और मैप को जो है कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है और किसी जगह पे भेजा भी जा सकता है। मैप मैप जो है दो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है पृथ्वी का। एक हिस्से के होने के कारण यह फ्लैट सतह एक पृथ्वी के एक हिस्से का समतल सतह का प्रदर्शन करता है। मैप जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को प्रदान करता है उस स्थान के बारे में, जैसे कि उसकी स्थिति क्या है, वहाँ पे कैसे स्थल रूप पाए जाते हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, और उस मैप में अलग अलग तरीके से मैप के अलग अलग इंफॉर्मेशन सूचनाओं के मैप को हम लोग जो एक जगह पे एकत्रित करके अलग अलग तरह के मैप को एकत्रित करके एक जो बुक बनाते हैं उसको हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ मैप। फिजिकल मैप, ये वैसे मैप होते हैं जिसमें प्राकृतिक परिदृश्यों को दिखाया जाता है, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशन। और इसको हम लोग भूदार्शिक मानचित्र भी कहते हैं। पॉलिटिकल मैप, ये वैसे मानचित्र होते हैं जो कि देश, महाद्वीप और राज्यों के बीच के सीमाओं को दिखाते हैं। थीमेटिक मैप्स, सामान्य रूप से थीमेटिक मैप उन सभी एक सिंगल वस्तु के ऊपर में, ये मुद्दे के ऊपर में इस तरह के मानचित्र को बनाया जाता है जो कि उसके वितरण या जैसे कि वर्षा का वितरण, जनसंख्या का वितरण, वनस्पतियों का वितरण, औद्योगिक केंद्रों का वितरण, रोड नेटवर्क या रेल नेटवर्क के वितरण को दर्शाया जाता है। डिजिटल मैप, आधुनिक मैप। आज के समय में डिजिटल मैप जो है हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सामान्य हो चुका है। हम जहाँ तहाँ अपने मोबाइल फ़ोन्स में या फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में इसको देख सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मैप होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कार्टोग्राफी के मदद से इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को एकत्रित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर में, जो कि मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन हो सकता है या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप के या कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाया जाता है। हालांकि अन्य जितने भी डिजिटल संसाधन है उन्हीं की तरह मैप में भी निर्भर रहना पड़ता है हमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट से चलना होता है, और यहाँ तक कि कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है।